Hello. Am I audible, student? Yes, ma'am. Okay. Okay. So I think yesterday in lab we have covered the basic of sequential circuit and combinational portion. Okay. What is the difference between combinational and sequential circuit? जो भी present थे वो बताइए. What is the main difference between sequential circuit and combinational circuit? Combinational circuit, you already know about that, and sequential circuit, we just yesterday discussed this thing. What is the difference हेलो between? मैम। हाँ. मैम, जो सीक्वेंशियल सर्किट होती है ना, वो प्रीवियस बाइट को सेव करता है। मतलब प्रीवियस जो भी आपका स्टेट है, लाइक फ्लिप फ्लॉप, स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप विच इज स्टोर्ड इन मीन्स sorry, stored in your memory unit. So it is a sequential circuit. Combinational वैसे आपको पता ही है. What is combinational? It consists of numbers of gates, but there is no memory unit in this combinational circuit. And sequential circuit consists of combinational portion plus memory, which stored the previous state of your circuit. Okay, means sequential circuit depend upon present input as well as past input also. Means it depend upon the history, and a combinational circuit simply depend upon the present input. Okay, so in sequential circuit memory unit, it is nothing but flip flop. So आपका जो भी पूरा चैप्टर है, so it covered the flip flop, types of flip flop, application of flip flop. It is the register and counter. It is a flip flop application of flip flop. And flip flop, it only store one bit of information. Flip flop store only one bit of information. Of course, it is a digital signal, so only one bit is required, either 0 or 1. So sequential circuit में जो flip flop है, which store only one bit of information, and depend upon like operation of flip flop, it is divided into categories: SR flip flop, D, T, and JK flip flops. Okay, so these are the basic जो हमने कल cover किया था. ओके, सो सीक्वेंशियल सर्किट क्या होती है? कॉम्बिनेशनल पोर्शन प्लस मेमोरी एलिमेंट विच इज द फ्लिप फ्लॉप. ओके, तो हमें किसको स्टडी करना है इस पूरे चैप्टर में? फ्लिप फ्लॉप. एंड सीक्वेंशियल सर्किट अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज: सिंक्रोनियस एंड asynchronous. Synchronous means if you provide any clock pulse, then and then your circuit is work, and without clock pulse, if it is a work, then it is a asynchronous circuit. Okay, difference है जो हमने already कल डिस्कस किए थे. Flip flop, so it is a bistable multi-vibrator which having only two stable state. कौन से state है उसके flip flop के? Either 1 or 0. Okay, and state of flip flop, it's changed by applying the proper triggering signal, or you can consider clock pulse also. Main difference between flip flop and latch. Okay, what is the difference between latch and flip flop? We have already discussed yesterday. What is the difference between latch and flip flop? It is a simple flip flop, means clock, जो क्लॉक होता है उसमें नहीं होता लैच में. Yes. Latch does not require any clock pulse. Simply आप जो भी inputs देंगे उसके थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, आपको परफॉर्म हो के आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा. बट क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके, सो इट इज यूज्ड फॉर सर्टेन फ्लिप फ्लॉप विच आर नॉन क्लॉक्ड. वो लिखा हुआ ही है, देखो, इट इज द नॉन क्लॉक्ड. ओके, सो फर्स्ट हमने टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप, सो उसके 4 टाइप्स है: एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप. ओके, ये चारों नेम याद रखने ही है. कोई भी एक फ्लिप फ्लॉप या दो भी पूछ सकते हैं, और ऑलवेज जीटीयू के एग्जाम में होगी कि एक्सप्लेन एसआर फ्लिप फ्लॉप विथ लॉजिक डायग्राम.
or explain JK flip-flop. Okay, so 4 types of flip-flop is there: SR, JK, T and D flip-flop. And now what is like SR, JK, T and D? It's just the name of the inputs. Okay, SR means दो inputs है, उसके name क्या है? SNR. So it is a set and reset. So it is SR. Okay, so if you consider a simple latch signal, so circuit, so simple SR latch you can design by using NAND gate as well as NOR gate. आप उसको NAND से भी बना सकते हो as well as NOR से भी हम उसको बना सकते हैं, बट दोनों के जो ऑपरेशन है वो क्या होंगे? रिवर्स होंगे, बिकॉज if we are designing using NOR gate then we have to provide the high signal. High signal का मतलब है 0 to 1 देना है. And if this SR flip-flop consists of NAND gate then we have to provide the lowest signal means 1 to 0. वो सिर्फ दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, ओके. सो ये आपको जो दिया हुआ है वो कौन सा SR लैच, नॉट flip-flop, क्योंकि अगर flip-flop है तो हमें उसमें क्लॉक पल्स अप्लाई करना पड़ता है. ओके, सो ये मैंने आई थिंक कल डिस्कस किया था. स्टार्टिंग में Q की वैल्यू को क्या कर देना है? 0. आफ्टर दैट इफ यू परफॉर्म दिस ऑपरेशन की ये 0 और यहाँ पे क्या लिया है मैंने SR को 1 and 0, तो 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 का डैश क्या हो जाएगा? 0. तो यहाँ पे Q डैश क्या आएगा? 0. जैसे ही वो 0 में यहाँ पे दूंगी, R क्या है? ऑलरेडी 0, तो उसका क्या होगा? 0 प्लस 0 का डैश इट इज 1. तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? 1 and 0. सिंपली आपको ये जो भी इनपुट से वो पास ऑन करना है और क्या आप फाइंड करना है? Q and Q डैश, तो आपको ये टेबल मिल जाएगा. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ये 1-1 कंडीशन. जैसे ही आप 1-1 अप्लाई करेंगे ना, आपको Q and Q डैश दोनों सेम मिलेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि Q एक नॉर्मल वैल्यू है एंड Q डैश क्या है? उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो वो दोनों कभी सेम नहीं हो सकते. लाइक ये 1 है तो ये क्या है? 0. ये 0 है तो ये क्या होना चाहिए? 1. So if Q and Q dash both are same, then this condition is called as a invalid condition or indeterminate condition or rest condition also. Okay? अगर आप देखेंगे ना फिर भी आपको पता चल जाएगा. अगर मैं यहाँ पे 1-1 देती हूँ, Q की वैल्यू आप कुछ भी लो, डजेंट मैटर. लाइक मैंने यहाँ पे लिया 0, तो 0 प्लस 1 उसका डैश क्या होगा? 0. यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो 1 प्लस 0 उसका डैश क्या होगा? 0. मतलब Q and Q डैश दोनों 0 मिल रहा है, which is not possible. That's why this particular condition, it is rest condition. Okay, what is rest condition? When two inputs of SR flip-flops, if both inputs are 1, then we can find this Q and Q dash both are same, either 0 or 1, which is not possible. So that's why this condition is called as an invalid condition or indeterminate condition or rest condition. Okay. सेम आप इसको NAND गेट से भी बना सकते हैं, बट ऑपरेशन सारे क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा. बट कोई भी एक ही आप याद रखना. वैसे याद रखने में इसकी जो सर्किट है वो तो कंपलसरी आपको याद रखनी है, और ये टेबल भी आपको याद रखना है, क्योंकि ऑलवेज आप इसको 0 देंगे फिर मैं कैलकुलेट करूंगी तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग. कैसे याद रखना है वो आपको बताती हूँ. इट इज वेरी इजी. अब देखो, नाउ SR लैच विथ कंट्रोल इनपुट, और यू कैन राइट हियर कंट्रोल की जगह पे क्या लिख सकती हूँ मैं? क्लॉक पल्स ऑल्सो. सो कुछ भी कंट्रोल या क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहा है तो ये कौन सा सर्किट बन गया? नाउ इट इज ए SR flip-flop. नाउ इट इज नॉट अ SR लैच, इट इज SR flip-flop. ठीक है, उसमें ये कंडीशन आपको याद रखनी है SR की. C की वैल्यू अगर 0 है, मतलब अगर मैं क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं कर रही हूँ, देन डजंट मैटर मेरा SR कुछ भी हो. क्यों? क्योंकि SR है वो आपकी सर्किट में एंटर ही नहीं होगा विदाउट क्लॉक पल्स. If it is a SR flip-flop, then if your clock pulse is 0, means अगर आप clock pulse अप्लाई नहीं कर रहे हैं. clock pulse का मीनिंग क्या है? अगर वो पॉजिटिव clock pulse है तो we have to provide 0 to 1. लेकिन अगर मैं 0 का 0 रख रही हूँ या फिर 1 to 0 दे रही हूँ तो मेरी flip-flop वर्क नहीं करेंगी, बिकॉज S and R है ना, वो सर्किट में एंटर ही नहीं होगा. सो वी डोंट केयर अबाउट दैट. दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या लिखा? एक्सेस. सो इट इज अ नो चेंज, मतलब कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा तो Q and Q डैश की वैल्यू जो लास्ट में थी वही रहेगी, सेम, मीन्स नो चेंज. ओके, नाउ 0 0 ये याद रखना है मुझे. 0 0 मीन्स नो चेंज. 0 1, अब देखिए इसमें दो इनपुट S and R है, सो इट इज ए रीसेट. S मीन्स सेट, R मीन्स रीसेट. मतलब रीसेट जब भी एक्टिव होगा, मीन्स इफ वैल्यू ऑफ रीसेट इज 1, देन आपका स्टेट क्या होगा? रीसेट मीन्स 0. इफ सेट इज 1
then my state means output is 1 and 1 1 वो आपको मैंने already explain किया, it is a indeterminate condition or invalid condition or rest condition. Same in JK, this particular condition 1 1 उसको हम rest around बोलेंगे. So there is a confusion between rest and rest around. So rest condition always generate in SR flip-flop and rest around always generate in JK flip-flop, वो याद रखो. ठीक है, तो 0 0 मीन्स क्या होगा, ये 4 स्टेजेस आपको याद रखना है टू ड्रॉ द डायग्राम. उसके लिए बार बार इसको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. 0 0 मीन्स नो चेंज, 0 1 मीन्स 0, 1 0 मीन्स 1 and 1 1 means indeterminate, invalid or rest condition. It is a screenshot of Morris Meno से मैंने लिया है क्योंकि एक ही उसमें सारा एक्सप्लेन हो रहा है, उसमें इजी दिया है कंपैरेटिवली आनंद कुमार एंड ऑल दिस पर्टिकुलर टॉपिक फ्लिप फ्लॉप. सो सिंपली मैंने फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ किया जैसे आगे किया था. ठीक है, 9 गेट से. ओके ओके, नाउ मुझे इसका टेबल बनाना है. ओके, सो प्रीवियस कोई भी वैल्यू तो होगी, आइदर वो 0 है या 1 है. आप जब भी इसको इनपुट दे रहे कुछ ना कुछ आउटपुट में तो प्रेजेंट होगा, आइदर वो 0 है या 1, बट इनिशियली हमें क्या एज्यूम करना है, इज इट इज 0. सो यहाँ पे आपको टोटल मैंने क्या लिया, 1 टाइम क्यू को 0 रखा है एंड 1 टाइम क्यू को 1 रखा है. सो 4 स्टेज को मैंने रिपीट किया है. यहाँ पे हमारे पास कितने स्टेजेस थे, 4. सो यहाँ पे मैंने 4 स्टेज को रिपीट किया. 4 4 q is equal to 0 and another 4 4 q is equal to 1. Okay, now 0 0. So next state q of t plus 1 मतलब यही होगा next state. q मतलब क्या है, previous state, and q of t plus 1 it is the next state. Means currently if we are working then it is our present state. Okay, so 0 0 means no change होता है. No change का meaning क्या होता है कि present output and previous output both are same. मीन्स q एंड q ऑफ t प्लस 1 बोथ आर सेम. मीन्स इसकी वैल्यू अगर 0 है तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0. नाउ इफ इट इज ए 0 1, सो 0 1 मीन्स क्या होगा, सेट, सॉरी रीसेट मीन्स 0. 1 0 मीन्स 1, 1 1 मीन्स इनडिटरमिनेट. अगेन इट इज रिपीटेड. 0 0 मीन्स नो चेंज. नो चेंज मतलब q की जो भी वैल्यू है वही आएगी. सो q इट इज ए 1, सो नाउ इट इज 1. Same 0 1, so it is 0. 1 0 means it is 1 and 1 1, so it is a indeterminate. Okay, so it is a very important. Normally ask a question like that ki draw the SR flip flop and derive the table as well as characteristic equation. This is a characteristic equation. Okay, we are using K-map here. Okay, so ये सर्किट है वो याद ही रखनी है. ये टेबल है, अब आप 4 कंडीशन आपने जो याद रखी उस पे से आप इसको इजीली बना सकते हैं. ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सो वी हैव टू एज्यूम कि q s and r 3 आर द वेरिएबल्स एंड q ऑफ t plus 1 इट इज माय आउटपुट. ओके, सो 3 वेरिएबल्स, so 2 raised to 3 मींस 8. सो 8 नंबर का मुझे स्क्वायर ड्रॉ करना है. ठीक है, के मैप ड्रॉ करना है. सो इट इज ए q, SR मैंने यहाँ पे लिया. ठीक है, कितने 1 है यहाँ पे देखो, 1 2 3, तो ये सारे मैंने 1 प्लस कर दिए जहाँ पे उसकी जगह है वहाँ पे. एंड इनडिटरमिनेट वी जस्ट मार्क एज ए डोंट केयर मीन्स x, एंड दिस डोंट केयर वी आर यूजिंग फॉर मोर सिंप्लीफिकेशन ऑफ K-map. तो यहाँ पे एक 4 का ग्रुप बनेगा और यहाँ पे एक 2 का बनेगा. सो अगर आप फाइंड करेंगे ये 4 का अगर ग्रुप बन रहा है, सो इट गिव यू s, सो इट इज s प्लस ये 2 का जो ग्रुप है उसमें कौन सा चेंज नहीं हो रहा है, इट इज ए r डैश, और यहाँ पे क्या है q रो में. सो आपकी इक्वेशन क्या आएगी, s प्लस r डैश q. इट इज ए इम्पोर्टेंट इक्वेशन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, ये आपको इक्वेशन याद रखनी है. एंड इट इज नॉट लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा, इट इज ए पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट. ओके, इसका आपको आगे भी यूज होगा बिकॉज इसका जो इसके बाद का जो सब्जेक्ट है डिपेंड अपॉन दिस डिजिटल, इट इज अ CO है जो नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा. इट इज ए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. सो आपके जो लाइक CPU में जो भी लाइक पर्टिकुलर डिजाइनिंग में जो स्टोर्स है वो सब क्या है, फ्लिप फ्लॉप्स है जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो ऐसा नहीं कि हम कंप्यूटर में हमें उसको याद नहीं रखना है, बट इट इज ए डेफिनेटली
आपके जो लाइक फील्ड है उसका ही ये एक पर्टिकुलर पोर्शन है जो आपको आगे यूज होगा इन नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो इसको कंपलसरी जो 4 फ्लिप फ्लॉप है उसको याद ही रखना है, ठीक है। सो ये उसका डायग्राम हुआ, ये उसका टेबल, इट इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड इट इज सिंपली ग्राफिकल सिंबल कि एस एंड आर बोथ आर इनपुट, सी इट इज ए कंट्रोल सिग्नल और क्लॉक पल्स एंड क्यू एंड क्यू डैश बोथ आर द आउटपुट्स। एनी डाउट इन दिस एस आर फ्लिप फ्लॉप? हेलो, हेलो हाँ बोलो, एनी मैम, डाउट? वो प्रोटेक्ट करके जो इक्वेशन मिला हाँ, 1 एसआर की वैल्यू रखते हैं तो मैम इनवैलिड कैसे मिलेगा मैम आउटपुट? इनवैलिड है ना वो, मुझे एक्स एक्स रखना है यहाँ पे। वो नहीं मैम, जो तो लास्ट में हमें इक्वेशन मिला उसमें बता रहा हूँ, बुलियन एक्सप्रेशन में। वो तो इसमें से मैंने फाइंड किया केएमएफ में से। बट मैम मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो हमारी इनवैलिड कंडीशन है, अगर हाँ, वो वैल्यू हम उसमें रखते हैं तो मैम हमें इनवैलिड आउटपुट कैसे मिलेगा मैम इस इक्वेशन पर से? इनवैलिड आउटपुट आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि आपको अभी से प्रेजेंट स्टेट दिया हुआ है, उसके लिए आपको इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ती है एंड क्यू डैश फाइंड करना पड़ता है। यहाँ पे क्यू डैश है ही नहीं, सो यू कांट कंपेयर के क्यू एंड क्यू डैश बोथ आर सेम। तो आप यहाँ पे बोल नहीं सकते कि ये लाइक इनवैलिड कंडीशन है इस तरीके से। आपको जो यहाँ पे ओके मैम। बताया गया है वो क्या है कि एक्चुअली सर्किट में से मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे जो मैंने किया है उसके थ्रू मैंने ये फाइंड आउट किया हुआ है। और इनवैलिड कंडीशन को यहाँ पे सिंपली किसके लिए लिया हुआ है, एज ए डोंट केयर पुट किया हुआ है, तो उसकी कोई वैल्यू आपको इक्वेशन थ्रू नहीं मिलेगी। ओके, ओके मैम। क्योंकि मुझे कंपेयर करने के लिए एक्चुअल में इनवैलिड कंडीशन क्या है कि व्हेन टू इनपुट्स आर सेम, कि लाइक एस एंड आर दोनों की वैल्यू 1 1 है, नॉट सेम। ओके, 0 0 भी सेम ही होता है। सो एस आर की वैल्यू अगर 1 1 है, अगर मैं इसमें प्लस करती हूँ तो मुझे क्यू एंड क्यू डैश दोनों सेम मिलता है, जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्यू डैश है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ मुझे क्यू ही दिया हुआ है, दैट्स व्हाई। ओके, नेक्स्ट इसके वेवफॉर्म इंपॉर्टेंस है। अगर आपको 4 मार्क्स में पूछा है देन दिस पर्टिकुलर फ्रेम इज इनफ, बट अगर आपको 7 मार्क्स से पूछा है देन यू हैव टू ड्रॉ द वेवफॉर्म। वेवफॉर्म में कुछ वैसे कुछ भी नहीं है, यू हैव टू टेक द रैंडम वैल्यू ऑफ एस एन आर। ओके, एंड फ्रॉम दिस टेबल, ये टेबल तो आपको अब याद रह ही गया है कि 0 0 मीन्स क्या होता है, नो चेंज। 0 1 मीन्स 0, 1 0 मीन्स 1 एंड 1 1 मीन्स इनवैलिड। तो एस आर की वैल्यू अगर यहाँ पे है तो मैं क्यू की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकती हूँ। तो उस तरीके से मुझे क्या ड्रॉ करना है, एस एन आर। मैंने यहाँ पे जो एस एन आर की वैल्यू ली है, इट इज नॉट लाइक कंपल्सरी, आप कोई भी एस आर की वैल्यू ले सकते हैं, बट अल्टीमेटली हमारा एम क्या है कि वी हैव टू फाइंड आउट क्यू। एस आर की वैल्यू में से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे क्लॉक पल्स दिया हुआ है, ठीक है। इफ वी आर कंसिडरिंग लाइक पॉजिटिव क्लॉक पल्स से हम दे रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है कि अगर पॉजिटिव क्लॉक पल्स है देन एंड देन मेरी फ्लिप फ्लॉप क्या होगी, एक्टिव। यहाँ पे नेगेटिव क्लॉक पल्स से मेरी क्लॉक पल्स क्या रहेगी, नॉट एक्टिव। अगेन यहाँ पे पॉजिटिव पल्स में इट इज एक्टिव, नॉट एक्टिव, एक्टिव एंड नॉट एक्टिव। एक्टिव का मीनिंग क्या है कि उस पर्टिकुलर टाइम में ही एस आर की वैल्यू है वो एंटर होगी इन योर सर्किट एंड यू कैन फाइंड आउट। यहाँ पे जो भी आउटपुट है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, इररिस्पेक्टिव टू द वैल्यू ऑफ एस एन आर। एस आर की वैल्यू कुछ भी हो, मेरा आउटपुट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा एज लाइक प्रीवियस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लॉक पल्स क्या हो चुकी है, अनेबल, उसके बाद मैं डिसेबल मीन्स उसके बाद में एस आर की वैल्यू कुछ भी दो, आउटपुट में उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, आउटपुट क्या रहेगा, सेम रहेगा अप टू द नेक्स्ट पॉजिटिव क्लॉक पल्स। जैसे यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में दिया है, तो फर्स्ट मैंने रैंडमली यूज किया है, एस की वैल्यू मैंने ले ली है और यहाँ पे रैंडमली मैंने आर का क्लॉक पल्स ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, आर का सिग्नल ड्रॉ किया हुआ है, इट इज एस एंड आर। ओके, तो फर्स्ट क्या है देखो, एस इज इक्वल टू 0 एंड आर इज इक्वल टू 0। इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए एस एंड आर दोनों की वैल्यू क्या है, 0। ओके, सो नाउ 0 मतलब क्या होता है, नो चेंज। बट नो चेंज, बट वो एक्टिव कब होगा, कब वैल्यू अफेक्ट करेगी, जब भी एक्टिव होगा। अभी तो यहाँ पे तो क्लॉक पल्स ही एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो आप उसकी कोई भी वैल्यू लो, अभी मुझे नहीं पता था, इधर मैं 1 ले सकती हूँ या फिर 0।
उसके बाद जैसे यहाँ पे पहुंचेंगे हम पॉजिटिव क्लॉक पल्स में, नाउ यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, इट इज 0 और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हुई 1। तो 0 1 मीन्स क्या होता है? 0। 0 मीन्स 0। ओके ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 था। आपको क्या करना है, फर्स्ट जब क्लॉक पल्स एक्टिव हो तब उसकी वैल्यू क्या आ रही है वो फर्स्ट लिख देना है, उसके बाद उसके आगे का लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आगे का भी 0 लिख देती तो ये 0 और ये 0 दोनों सेम हो जाते। तो अगर यहाँ पे ये 0 आ रहा है ना तो आपको आगे का 1 दिखाना है, क्योंकि आगे का वैसे भी मुझे पता ही नहीं है कि आइदर वो 1 है या 0, मतलब मैं कुछ भी ले सकती हूँ। लेकिन अगर आप 0 ले रहे हैं तो ये पूरा इसके साथ मैशअप हो जाएगा। समझ आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ? कि यहाँ पे मेरी वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, तो मुझे ये प्रीवियस क्या लेना है 1। अगर यहाँ पे 1 आती तो मुझे प्रीवियस क्या लेना है 0, क्योंकि इस प्रीवियस में मेरी क्लॉक पल्स एक्टिव ही नहीं थी, मतलब इनपुट में कुछ भी एंटर नहीं हुआ था, तो मुझे पता नहीं कि मेरा आउटपुट क्या है। सो आउटपुट कुछ भी हो सकता है, इधर 1 और 0, सो वी कैन एज्यूम 1 है या फिर 0। तो अगर ये 0 है तो यहाँ पे 1 लिखना है ताकि वो रिफ्लेक्ट हो कि यहाँ पे ये 0 आया, दैट्स वाई। अब देखो ये दोनों की साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। SNR, नाउ SNR की वैल्यू क्या हो गई 0 0, ये 0 0 होगा मतलब नो चेंज। बट उस टाइम के पे यहाँ पे देखो मेरी क्लॉक पल्स भी क्या हो चुकी है, डीएक्टिव। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा आउटपुट में, आउटपुट सेम रहेगा अप टू द नेक्स्ट पॉजिटिव क्लॉक पल्स। नाउ ड्यूरिंग नेक्स्ट पॉजिटिव क्लॉक पल्स क्या होगा, इट इज अ 1, इट इज 0। So what is 1 0? 1 0 का आउटपुट क्या आता है? If S is equal to 1 and R is equal to 0, 1। तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअल में 1 अप टू द कहाँ पे, यहाँ तक। नाउ इट इज अगेन डीएक्टिव, मतलब इसका कोई भी रिफ्लेक्ट इस पे नहीं होगा, मतलब ये कंटिन्यू रहेगा अप टू द नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल। सो नेक्स्ट पॉजिटिव क्लॉक पल्स आया। नाउ यहाँ पे वैल्यू क्या हो चुकी है 0 और यहाँ भी क्या है 0, तो उसका मीनिंग क्या होता है, नो चेंज। नो चेंज मतलब जो था वही। तो यहाँ पे आगे मैं इसको थोड़ा फॉरवर्ड करूंगी, नो चेंज हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू चेंज हो चुकी है एंड फ्लिप फ्लॉप भी उस टाइम पे एक्टिव ही है, तो वी हैव टू रिफ्लेक्ट, मतलब ये 0 और ये क्या हुआ 1, तो 0 1 का क्या होता है 0, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 0। उसके बाद तो ये भी डीएक्टिव हो चुका है, तो ये कंटिन्यू रहेगा। ओके तो आप होमवर्क में ये ट्राई करना, एसआर का कोई भी वेवफॉर्म आपको ड्रॉ कर देना है, रैंडम वेवफॉर्म एसआर का, एंड यू टू फाइंड आउट क्यू, ठीक है। लेकिन ये प्रीवियस वैल्यू है ना, आप कोई भी लिख सकते हैं, आइदर 0 और 1, बट उससे पहले नेक्स्ट फाइंड कर लेना कि जब क्लॉक पल्स एक्टिव हो रही है तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे ले लेना ताकि वो अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट हो। अदरवाइज अगर आप 0 भी लिखेंगे डजेंट मैटर, कोई मतलब आपका रॉन्ग नहीं होगा ये, ठीक है। एनी डाउट इन दिस वेवफॉर्म? मैम जब SR 0 0 थे तो मैम हाँ। हमें 1 क्यों लिया? SR 0 0 का मतलब क्या है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या है कि प्रीवियसली जो आउटपुट आ रहा है ना वही फॉलो होगा, दैट्स वाई। तो प्रीवियसली 1 था ना, दैट्स वाई 1 आया। ओके मैम। ओके नाउ एनीवन एल्स? किसी को डाउट है तो पूछिए वेवफॉर्म में, बिकॉज इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 7 मार्क्स में पूछे तो आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ रहा है डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट विथ ओनली वन पॉजिटिव इनपुट and it operates the positive clock pulse and negative plus clock pulse, it depend, but D latch operate with enable signal। D flip flop and D latch का डिफरेंस दिया है स्टार्टिंग में कि D flip flop किससे ऑपरेट होगी, क्लॉक पल्स के, क्लॉक पल्स से वो ऑपरेट होगी, इधर वो पॉजिटिव दो या फिर नेगेटिव दो। बट D लैच वो किससे ऑपरेट होता है, अनेबल सिग्नल्स, मतलब आप जैसे ही उसमें SR की या फिर D की वैल्यू एंटर करेंगे वो ऑपरेट हो जाएगा। दैट मीन्स output of D flip flop is insensitive to changes in the input. D except for active transition of the clock pulse, जो आगे था वही है। जब आपका clock pulse एक्टिव होगा then and then flip flop वर्क करेगा, otherwise it is insensitive to change the input, like, and the circuit diagram of D flip flop is shown in figure। सेम ये भी मुझे याद रखना, वैसे मेजर डिफरेंस नहीं होगा। देखो यहाँ पे दो था
एस एन आर 2 दे रहे थे ना आप, तो यहाँ पे डी है वो दोनों जगह पे देना है। यहाँ पे मैं इंडिविजुअली दे रही थी एस एन आर, देखो सेम ही है। यहाँ पे डी को एज इट इज दे दिया है, और इस सेल में डी का कॉम्प्लीमेंट करके यहाँ पे दिया हुआ है यूजिंग NAND। ठीक है, बाकी पूरा सेम है ना। क्यू डी फ्लिप फ्लॉप क्या है? सो एज पर द लाइक दिस टेबल, Q इज इक्वल टू D होता है, मतलब D में आप जो भी इनपुट्स देंगे ना वही मुझे आउटपुट्स में मिलेगा। ठीक है, आपको ऐसा हो तो ट्राई करके देखने की, यहाँ पे अगर मैं 1 दे रही हूँ तो मुझे Q1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो देखना है। आप बाद में ट्राई कर लेना होमवर्क में, फिर मुझे बताना कि अगर मैं यहाँ पे 1 प्लेस कर रही हूँ तो मुझे Q में 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिलेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ उसके बेसिस पे कि अगर D की वैल्यू 0 है तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या होगा, 0। डजेंट मैटर कि प्रीवियस आउटपुट क्या है, यहाँ पे देखो उसका कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। 0 मीन 0, 1 का 1, 0 का 0 एंड 1 का 1। सो इट इज अ वेरी इजी फ्लिप फ्लॉप। आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, Q इज इक्वल टू D। ओके, Q का मीनिंग यहाँ पे मैं जो बोल रही हूँ वो आपका क्या है, प्रेजेंट स्टेट है, और ये जो आपको दिखाया गया इट इज ए प्रीवियस स्टेट ऑफ योर फ्लिप फ्लॉप 0 एंड 1, बट वो इस पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्यों रिफ्लेक्ट नहीं होगा? बिकॉज Q ऑफ T प्लस 1 क्या है, D है, दैट्स वाई ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सो Q ऑफ T प्लस 1 इज इक्वल टू D, वो मेरा क्या होगा यहाँ पे, लाइक टेबल थ्रू मुझे ये रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने यहाँ पे कहाँ से लिखा है ये, नॉर्मली आप वैल्यू प्लेस करके चेक कर सकते हैं कि Q ऑफ T प्लस 1 क्या मिलेगा आपको, D मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ऑफ कोर्स Q ऑफ T प्लस 1 एंड D दोनों सेम है, तो ऑफ कोर्स इक्वेशन भी क्या होगी, Q ऑफ T प्लस 1 इज इक्वल टू D। इवन आप अगर केमएफ ड्रॉ करते हैं, Q एंड D मीन्स 2 वेरिएबल, सो 4 स्क्वायर का क्या होगा केमएफ, इफ यू प्लेस द वैल्यू जहाँ पे 1 1 है, इफ यू कंबाइन दिस पेयर सो यू कैन फाइंड D। बट इसकी रिक्वायरमेंट वैसे है नहीं, आपको कुछ लाइक ज़्यादा दिखाना है कि मैं ज़्यादा थोड़ा लिखना चाहती हूँ तो आप लिख सकते हैं कैमएप, अदरवाइज डायरेक्टली इस टेबल से ही वी कैन फाइंड Q ऑफ T प्लस 1 इज इक्वल टू D। सेम इट इज़ योर सिंबल। ओके, सेम आप इसके भी वेव फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करना है, क्लॉक पल्स जैसे हमने आगे किया था, क्लॉक पल्स ड्रॉ करना है, फिर D ड्रॉ करना है, एंड D इज इक्वल टू क्या रहेगा, Q इज इक्वल टू क्या होता है, D। तो ये तो बहुत इजी है, जो भी आपको इनपुट दिया है सेम वैसा ही आपको क्या ड्रॉ कर देना है, आउटपुट ड्रॉ कर देना है। ठीक है, इसलिए मैंने नहीं ड्रॉ किया यहाँ पे। नाउ JK, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू टू डिफरेंशिएट कि SR एंड JK में क्या डिफरेंस है। JK फ्लिप फ्लॉप इट इज अ रिफाइनमेंट ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप, in that the indeterminate state of RS type is defined in JK। जो indeterminate state था ना SR में, कौन सा indeterminate state था इन SR में, SR11 1 1, it is the indeterminate state। We have to define this state in JK flip flop। Okay, input J and K behave like SNR to set and clear the flip flop respectively। The input marked J is for set, input marked K is for reset। When both inputs are 1, flip flop switches to its complement state, that's if Q is equal to 1 it switch Q is equal to 0 and vice versa। means at 1 1 condition, एक्चुअल में दोनों सेम है वैसे JK and SR, but at particular condition when it is a 1 1 JK give you the toggle inputs। टोगल का मीनिंग है इट इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीवियस। अगर प्रीवियस मेरा आउटपुट है वो 1 है तो नेक्स्ट आउटपुट क्या होगा, 0। बस वही इसमें चेंज है, बाकी पूरा सेम है। एंड फॉर दिस चेंजेस वी हैव टू प्रोवाइड फीडबैक। Q का फीडबैक कहाँ पे दूंगी मैं, इनपुट में। सेम यहाँ पे Q डैश का फीडबैक में कहाँ पे दूंगी, यहाँ पे। ठीक है, सो 0 0 मीन्स 0 जो आगे था वही लिखना है, सिर्फ फीडबैक दे रहे हैं, बाकी सब क्या है, सेम है। Q को एज ए फीडबैक K में देना है, Q डैश को एज ए फीडबैक J में एंटर करना है। सेम टेबल जो SR का था। अब देखो 0 0 मीन्स नो चेंज, जो SR में था वही, सिर्फ 1 1 के लिए चेंज आएगा। 0 0 मीन्स 0, मतलब एज लाइक अ प्रीवियस आउटपुट, सो 0, so it is 0। Now it is a, if it is 0 1, so 0 1 0 means 1। Now 1 1, तो SR में ये कंडीशन क्या थी, इनवैलिड, बट JK give you the toggle output। toggle का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट, मीन्स
इफ प्रीवियस आउटपुट इज 0 तो नेक्स्ट उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, सो इट इज 1. सेम 0 0 मीन्स क्या होगा, नो चेंज. नो चेंज का मीनिंग क्या है, एज लाइक प्रीवियस. तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी क्या आएगा 1. 0 1 सो 0. 1 0 मीन्स 1 एंड 1 1 मीन्स अगेन टोगल. टोगल मतलब अगर प्रीवियस 1 है तो ये क्या होगा 0 होगा. डन. सेम मुझे क्या ड्रॉ करना है इसका, लाइक केमैप ड्रॉ करना है. q j k both like 3 are the variables, so we have to draw the 3 variable kmap 8 numbers of square. यहाँ पे कोई भी डोंट केयर नहीं है, all 4 are defined, तो वो 4 को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया इन kmap एंड 2 2 की पेयर बन रही है. यहाँ पे एक पेयर बनेगी और यहाँ पे एक पेयर बनेगी. इफ यू फाइंड द आंसर फॉर दिस पेयर, सो इट इज ए q डैश एंड यहाँ पे क्या आएगा j, सो इट इज ए j q डैश फर्स्ट टर्म दिस वन. ठीक है. एंड नेक्स्ट इसकी अगर बात करूँ, सो इट इज ए k डैश q, सो इट इज ए j q डैश प्लस k डैश q. इट इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. एंड इफ यू वांट टू ड्रॉ द सिंबल, सो यू कैन आल्सो ड्रॉ द सिंबल एज लाइक अर्लियर फ्लिप फ्लॉप्स. लाइक j के मेरे इनपुट्स है, क्लॉक पल्स है, आउटपुट क्या है q एंड q डैश. ठीक है. एंड आउटपुट अगेन फीडबैक करके कहाँ पे देने हैं, इनपुट्स में देने हैं. ठीक है. ओके यहाँ पे एक रेस्ट अराउंड कंडीशन आपको, यस मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस 1 1 इट इज कॉल्ड एज अ रेस्ट अराउंड कंडीशन. ओके. एसआर में क्या था, इट इज ए रेस्ट कंडीशन. एंड जेके में इफ इट इज ए टोग, इन जेके में इट प्रोवाइड्स द टोगल एंड दिस 1 1 कंडीशन इट इज कॉल्ड एज रेस्ट अराउंड कंडीशन. ओके. ये एसआर का तो इतना नहीं पूछते, बट जेके का नॉर्मली लाइक आस्क मेनी टाइम्स कि व्हाट इज रेस्ट अराउंड कंडीशन, how it is generated and how we can avoid or remove this rest around condition. ओके. तो सिंपली मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह का वेवफॉर्म ड्रॉ किया है कि 1 1 आ रहा है. आपको वेवफॉर्म इस तरह से ड्रॉ करना है कि 1 1 आना चाहिए इनपुट में. अगर आप ऐसा करेंगे कि इनपुट में 1 1 ही नहीं आएगा तो ये कंडीशन कभी जनरेट ही नहीं होगी. तो मैंने ऐसा वेवफॉर्म ड्रॉ किए है कि एक साथ में दोनों 1 1 है यहाँ पे देखो, तो वो क्या जनरेट करेंगे, रेस्ट कंडीशन. ओके. तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे सिंपल एक क्लॉक पल्स लिया हुआ है, अनेबल सिग्नल भी बोल सकते हैं आप उसको. ये मैंने जे ड्रॉ किया, ये मैंने के ड्रॉ किया. आप अपने हिसाब से जे के का कोई भी वेवफॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट क्यू. ओके. यहाँ पे देखो अभी अनेबल ही नहीं है. कब अनेबल हो रहा है, यहाँ पे. तब तक को मुझे कुछ देखना ही नहीं है. ठीक है. तो जैसे मैं यहाँ पे देखूँ 1 and 0, 1 0 का क्या होता है 1, तो प्रीवियस जो भी है उसको क्या कर देना है 0, ताकि वो रिफ्लेक्ट हो कि आप इसका चेंज आपने किया. अदरवाइज वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होगी. अगर मैं प्रीवियसली सबको 1 रख दूँ तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि प्रीवियसली मुझे कुछ पता ही नहीं है. क्यों नहीं पता, बिकॉज मेरा क्लॉक पल्स ही अनेबल नहीं है. सो वी कैन एज्यूम आइदर 1 और 0. सो नाउ इफ क्लॉक पल्स इज अनेबल, सो 1 0 मीन्स क्या होगा 1. नाउ इफ इट इज अ 1 1, सो इट इज अ टोगल कंडीशन. टोगल का मीनिंग क्या है कि अगर प्रीवियस 1 है तो नेक्स्ट क्या होगा 0, ये प्रीवियस 1 है तो नेक्स्ट क्या होगा 0. अगेन मैं स्मॉल ड्यूरेशन कंसिडर करती हूँ कि डिफरेंट टाइम पीरियड की t0 t1 t2 t3, तो कंटिन्यूसली क्या होगा, टोगल होगा. फिक्स स्टेट नहीं है. देखो फिक्स स्टेट का मतलब क्या है कि ये फिक्स स्टेट था कि 1 and 0 तो ये 1 ही रहता है. लेकिन यहाँ पे 1 1 इतने पोर्शन के लिए अगर मैं कंसिडर करती हूँ 1 1 यहाँ तक, तो वो क्या होगा, प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट. अगर ये 0 है तो क्या होगा 1. वापस में यहाँ पे देखूँ तो अगेन इट इज ए 1 1, सो उसका वापस टोगल होगा. मीन्स 1 का क्या होगा 0, 0 का 1, 1 का 0. जब तक ये दोनों की कंडीशन 1 1 रहेगी तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी. ओके. एंड नेक्स्ट है क्या आ रहा है 0 1, तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा 0. ठीक है. और इसके बाद तो ये भी डिसेबल हो रहा है, तो ये क्या रहेगा कंटिन्यू. ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर मोमेंटरी चेंज इन योर आउटपुट, इट इज कॉल्ड एज ए रेस्ट अराउंड कंडीशन. when jk is equal to 1, k is equal to 1 and clock pulse is equal to also 1, or you can consider it is unable. So this particular condition is generated, it is called as a rest around condition. वो आपको दिखानी भी है अगर वो 7 मार्क्स के लिए पूछते हैं तो. Any doubt in this? नो मैम. ओके. लास्ट फ्लिप फ्लॉप है. ठीक है. टी फ्लिप फ्लॉप. T flip-flop, it is same as JK, but it is a single input version of JK flip-flop.
T flip-flop, it is a simplified version of JK flip-flop. It is obtained by connecting the same T और सेम इनपुट T टू बोथ ऑफ द इनपुट्स. यहाँ पे मैं क्या दे रही थी इन JK में, यहाँ पे J दे रही थी और यहाँ पे K. नाउ दोनों में मुझे क्या देना है, T. बाकी पूरा सेम है, फीडबैक भी आएगा इसमें. सो इट इज अ सिंगल इनपुट वर्जन ऑफ JK flip-flop. ओके, सो ऑफ कोर्स टो का मीनिंग क्या होता है, वैसे टोगल से ही उसका लाइक नेम पड़ा है. T flip-flop मीन्स इनपुट एंड आउटपुट both are the complement of each other, so it is a toggling. Okay, so it is a Q. अगर यहाँ पे आपको दिया है T, अगर मैं 1 दे रही हूँ तो Q मुझे क्या मिलेगा, 0. T अगर मैं 0 दे रही हूँ तो Q मुझे क्या मिलेगा, 1. ओके, सेम यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना है. डजेंट मैटर कि प्रीवियस आउटपुट क्या था, वो तो सिंपली लिखा है मैंने 0 0 1 1. मेन क्या देखना है ये, ठीक है. यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या है, 0. ठीक है, तब यहाँ पे कंपेयर कैसे करेंगे आप, तो यहाँ पे देखो ये T था, प्रीवियसली मेरा आउटपुट क्या था, 0 0, तो वो 0 रहेगा. ठीक है, अगर 0 था और ये इनपुट क्या था, 1, तो क्या हुआ, मतलब टॉगलिंग हुआ. ठीक है, मतलब इसमें हमें Q को भी देखना ही पड़ेगा. D में वैसे रिक्वायरमेंट नहीं थी Q की, बट यहाँ पे Q को भी देखना पड़ेगा क्योंकि Q एंड T के दोनों में क्या, बीच में क्या रिलेशंस है. तो अगर T की वैल्यू 0 है, Q की वैल्यू भी 0 है, मतलब इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर अगर क्या है अभी यहाँ पे सेम, मतलब टॉगलिंग नहीं हो रहा है, सो इट इज 0. 0 एंड 1 मतलब कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, सो इट इज 1. 1 0 मीन्स कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, सो इट इज 1. एंड अगेन 1 1 कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, सो इट इज 0. और आप इस तरह से भी यहाँ पे देखो, इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर Q की वैल्यू 0 0 है तो ये इसका आंसर सेम रहेगा, 0 का 0 1 का 1. लेकिन अगर Q क्या हो रहा है, 1 1 हो रहा है, देन ये टोगल प्रोवाइड करेगा, 0 का 1 होगा एंड 1 का 0. आपको जिस तरह से याद रखना आप रख सकते हैं, बट पेयर वाइज इसी रहेगा. हेलो, हाँ बोलो मैम. ये एक्सओआर कंडीशन नहीं है, एक्सओआर गेट का ही आउटपुट है ना. हाँ हाँ, एक्सओर कंडीशन ही है, एक्सओर ही है, बट एक्सओर हमने इसके थ्रू टेबल बनाया हुआ है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि एक्सओर है. यहाँ पे देखो केमएफ ड्रॉ किया एंड एक्सओर की इक्वेशन मिलेगी. ठीक है, मतलब वो एक्सओर गेट नहीं है, वो सिंपल इसके थ्रू हमें मिला है, ऐसा आप बोल सकते हैं. ठीक है, बट उसको एक्सओर गेट थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट मेन आपको अगर पूछे तो आपको यही ड्रॉ करना है. इट इज ओनली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ T flip-flop. डायग्राम तो यही ड्रॉ करना है. ठीक है, सो अगर 0 0 आ रहा है तो 0 ही रहेगा, 0 1 दोनों में अगर डिफरेंस है तो 1 आएगा, उतना याद रखना है. मतलब अगर दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है तब टोगल क्या करेगा, 1 होगा, वर्क होगा, मतलब वर्क करेगा. दैट्स व्हाई सेम यहाँ पे 2 वेरिएबल्स, तो 2 वेरिएबल का केमएफ ड्रॉ करना है, बट केमएफ का वैसे कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो 1 1 मैंने प्लेस कर दिया, बट कोई भी पेयर नहीं बन रही है, तो वे सिंपली राइट द पर्टिकुलर टर्म. सो इट इज अ TQ डैश, यहाँ से भी लिख सकते हैं आप TQ डैश एंड QT डैश यहाँ पे जो है. सो इट इज एक्सओर ऑफ T एंड Q ऑल्सो. ठीक है, ओके. ट्रिगरिंग का हम बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी कैन अवॉइड दिस रेस्ट अराउंड कंडीशन. ओके, क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, किसी को आइडिया आ रहा है? इसको मैं कैसे रोक सकती हूँ इस पर्टिकुलर को, क्योंकि ये कंटिन्यूसली हो रहा है. एक्चुअली आपकी डिसेबल થાય ને ઇનેબલ ને. हाँ बोलो. ઇનેબલ આપી છે આપણે અને ડિસેબલ કરી દઈએ તો એક જ સ્ટેટ પણ हाँ, अगर आप उसको क्या कर दे कि इसको मैं जैसे ही यहाँ पे चेंज आ रहा है मैं इसको अगर डिसेबल कर देती हूँ तो ये पॉसिबल है ना. नेक्स्ट स्टेट मुझे उसको एक ही बार चेंज करने का मौका देना है, उसके बाद कोई मौका ही नहीं देना है चेंज करने का, तो हो सकता है कि इस सिग्नल है वो पर्टिकुलर पोर्शन के लिए ही एक्टिव होना चाहिए, उसके बाद वो एक्टिव ही नहीं रहेगा. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपका जो अनेबल सिग्नल है ना वो ज्यादा टाइम के लिए ऑन है, दैट्स व्हाई ये हो रहा है. अगर इसको मैं डिसेबल कर दूं यहाँ से तो ये चीज होगी ही नहीं. सो अनदर ट्रिगरिंग कम इनटू द पिक्चर. इट इज ए लाइक वी कैन अवॉइड दिस कंडीशन बाय यूजिंग एज ट्रिगर फ्लिप-फ्लॉप. एज का मीनिंग क्या है, अब ट्रिगरिंग है ना वो मुझे पूरे सिग्नल में नहीं देना है, मतलब मुझे कमांड किस तरह से देना है कि पॉजिटिव क्लॉक पल्स में ही मेरा एक्टिव होना चाहिए, जे कैसा नहीं देना है.
मुझे सिर्फ ऐसा देना है कि एज ट्रिगर, उसका मीनिंग क्या है, मेरी फ्लिप फ्लॉप फिर सिर्फ एज पे ही ट्रिगर करेगी। मतलब मेरी फ्लिप फ्लॉप सिंपल, ये पॉजिटिव एज है ना, तो जैसे ये 0 to 1 होगा तभी वो वर्क करेगी, बाकी पूरे पोर्शन के लिए मेरी फ्लिप फ्लॉप डिसेबल हो जाएगी। तो ये पॉसिबल है। सो इट इज कॉल्ड एज एज ट्रिगरिंग। पर्टिकुलर एज पे ही आपकी फ्लिप फ्लॉप एक्टिव होगी, उसके बाद नहीं होगी। तो उस एज पे एक बार उसका हो जाएगा 1 to 0, फिर होगा ही नहीं। सो यूजिंग एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप वो एक ऑप्शन है। एंड दूसरा यूजिंग मास्टर स्लेव जगह फ्लिप फ्लॉप, वो नेक्स्ट आएगा। मास्टर स्लेव क्या हो बाद में बताऊंगी, ठीक है। बट दिस इज द 2 वेज। आपको ऐसा पूछेंगे व्हाट इज रेस्ट अराउंड कंडीशन एंड हाउ वी कैन अवॉइड, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि यूजिंग एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप वी कैन अवॉइड एज वेल एज यूजिंग मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ठीक है। ट्रिगरिंग ओके हम नेक्स्ट टाइम ही करेंगे। एंड एज ट्रिगर के भी टाइप्स है। पॉजिटिव पे एज पे मुझे फ्लिप फ्लॉप को वर्क करवाना है या फिर नेगेटिव एज पे वर्क करवाना है, ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। एजिस का मीनिंग क्या है, जैसे यहाँ पे देखो मेरी फ्लिप फ्लॉप सिर्फ इस एज पे ही वर्क करेगी, ये पूरे क्लॉक पल्स पे वर्क नहीं करेगी। सेम मेरी जो फ्लिप फ्लॉप है अगर वो नेगेटिव एज ट्रिगर वाली फ्लिप फ्लॉप है तो सिर्फ नेगेटिव एज पे ही वर्क करेगी जब वो 1 to 0 होगा तब। तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है। जितने मेरी फ्लिप फ्लॉप कम टाइम के लिए अनेबल रहे उतना अच्छा है टू अवॉइड द रेस्ट अराउंड कंडीशन। एंड अगर आपको पूछे कि व्हाट इज द मल्टीपल टॉगलिंग, सो मल्टीपल टॉगलिंग इज ऑल्सो दिस, वही एक्सप्लेन करना है। मल्टीपल टॉगलिंग मतलब क्या है, 0 to 1, 1 to 0, ये जो मल्टीपल टॉगल हो रहा है इट इज कॉल्ड एज ए मल्टीपल टॉगलिंग। एंड हाउ वी कैन अवॉइड, सेम यूजिंग रेस्ट अराउंड, सॉरी यूजिंग एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप एंड मास्टर स्लेव जगह फ्लिप फ्लॉप। कल मैं सबको पूछूंगी, मेरा जो लेक्चर्स होगा सॉरी मंडे, फ्लिप फ्लॉप एंड व्हाट इज रेस्ट कंडीशन, व्हाट इज रेस्ट अराउंड कंडीशन, ओके, एंड इक्वेशन ऑफ ऑल द फ्लिप फ्लॉप एसआर जेके टी एंड डी, क्योंकि ये बेस है। उसके बाद उसकी एप्लीकेशन आएगी रजिस्टर एंड काउंट। एंड अगेन फ्लिप फ्लॉप के भी टाइप्स है, जैसे आप अभी देख रहे हैं एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है, सो पॉजिटिव एज ट्रिगर एंड नेगेटिव एज ट्रिगर। उसके बाद मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप आएगी। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप के कन्वर्जन्स आएंगे कि मुझे लाइक मेरे पास अभी डी फ्लिप फ्लॉप है, मुझे उसमें से टी बनाना है, मेरे पास वो टी अवेलेबल नहीं है बट मेरे पास डी है, उसमें से मुझे टी जनरेट करना है फ्लिप फ्लॉप, तो वो कैसे करना है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको पूछ सकता है। उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस आएगी, ठीक है। सो दिस आर द 4 फ्लिप फ्लॉप जेके एसआर टी एंड डी। एक बार रीड कर लेना, मैं मंडे पूछूंगी सबको। ओके, एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट इन फ्लिप फ्लॉप पोर्शन? हेलो, ओके। एंड आदित्य प्रेजेंट है, आदित्य कौन सा नंबर है, 2 to 9 नंबर प्रेजेंट है, 2 to 9। हेलो, 2 to 9 नंबर। वाल्वी आदित्य समथिंग नेम है, एब्सेंट है। एटलीस्ट आप टेस्ट में अपना नंबर तो सही लिखिए, क्योंकि नंबर भी आप अगर किसी और का लिखेंगे तो दिस पर्टिकुलर गूगल शीट रिफ्लेक्ट द 2 times, तो पर्टिकुलर 2 times रिफ्लेक्ट हुआ था आपका, उसकी वजह से बाकी के पीछे सबको प्रॉब्लम हो सकती है, 2 times रिफ्लेक्ट हुआ, दैट्स वाई। तो प्लीज नेक्स्ट टाइम से आपकी जब भी एग्जाम हो, प्लीज आप जो भी डिटेल्स फिलअप कर रहे हैं ना वो अच्छी तरह से फिलअप कीजिए, किसी और का एंडोमेंट नंबर मत लिखिए एटलीस्ट, ओके। एंड मैंने क्वेश्चन आपको बोला था मैक्स टर्म वाला था, उसमें आंसर की में करेक्ट है बट उसमें मैंने गूगल फॉर्म मैंने जब जनरेट किया तब उसमें रॉन्ग टिक हुआ था, दैट्स वाई मार्क्स में मॉडिफिकेशन हुआ है। बट मैं अपडेट करूंगी आफ्टर ये जो फीस के सारे इश्यू चल रहे हैं अभी, उसके बाद आपके मार्क्स जो चेंज हुए मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। ओके, प्लीज राइट योर नंबर इन चैट बॉक्स।